India is a completely different system than China. So whereas China is very centralized, uniform, India is decentralized and has multiple languages, multiple cultures, multiple traditions, multiple religions. सत्ता छूटने की बदहवासी में उनके खानदान के बरखुरदार के द्वारा जो कि आज भारत विरोधी शक्तियों के फर्माबरदार बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं, अपनी उसी आदत के अनुरूप विदेश की धरती से एक और ऐसा बयान दिया है। दोस्तों, राहुल गांधी जब भी विदेशी दौरों पर जाते हैं, बीजेपी की सांसें उथल पुथल होने लगती है। उनकी यात्रा से बीजेपी में पूरी तरह से हलचल पैदा हो जाती है। इस बार भी राहुल गांधी दक्षिण अमेरिका के 4 देशों कोलंबिया, ब्राजील, पेरू और चिली के दौरे पर हैं। अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी राजनीतिक नेताओं, छात्रों और कारोबारी वर्ग से मुलाकात कर रहे हैं। हर मुद्दे पर बोल रहे हैं। राहुल गांधी जिस मुद्दे पर देश में बोलते हैं, उसी मुद्दे पर विदेशों में भी बोलते हैं। उसमें कहीं भी अंतर नहीं होता। लेकिन बीजेपी राहुल के बयान को देश के खिलाफ बताने में पूरी तरह से लगी हुई है। उससे अपने प्रवक्ताओं को मैदान में उतार दिया है। दिन भर में दोस्तों करीब 3-4 प्रवक्ता तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आ ही जाते हैं और उन सब के टारगेट पर राहुल गांधी होते हैं। मुझे तो लगता है कहीं पीएम मोदी, जिन्होंने पीएम बनने के बाद से एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, वो अपने रिकॉर्ड ना तोड़ दें। कुल मिलाकर दोस्तों बीजेपी की कोशिश यही है कि वो किसी भी तरह से राहुल गांधी पर देशद्रोही का लेबल चिपका दें। लेकिन इन सब के बीच एक के बाद एक पीएम मोदी के पुराने बयान सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। पीएम रहते हुए विदेशों में मोदी के उन बयानों को सुनकर आप यही कहेंगे, बीजेपी ने बौखलाहट में आकर सेल्फ गोल कर दिया, अपने शीशे की दीवार पर खुद ही पत्थर फेंक लिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, कोलंबिया में राहुल गांधी ने एक बयान दिया। सबसे पहले उसे सुनिए। India is a completely different system than China. So whereas China is very centralized, uniform, India is decentralized and has multiple languages, multiple cultures, multiple traditions, multiple religions. So India is a much more complex system, and India's strengths which exist are not necessarily China's strengths. They're different. So they're big systems, but they're different and they operate differently. India also has a very old tradition, spiritual tradition, and a thought system. Very profound and old ideas that are very useful in today's world. The idea of non-violent political action comes from deep within Indian tradition. Mahatma Gandhi was a modern exponent of that. So there's a lot that India can offer to the world in terms of our tradition, our way of thinking, information technology, our engineering capability, our healthcare system. So I'm very optimistic about India. But at the same time, there are also fault lines within the Indian structure. There are risks that India has to overcome. Which are those risks that you see? The single biggest risk is the attack on democracy that is taking place in India. Because India has multiple religions, multiple traditions, multiple languages, and India actually is a conversation between all its people. And different traditions, different religions, different ideas require space. And that the best method for creating that space is the democratic system. And currently there is a wholesale attack on the democratic system in India. So that's a risk. This other big risk is risk between different conceptions, different parts of the country, right? Some 16, 17 different languages, different religions. So allowing these different traditions to thrive, giving them space to express themselves is very important for a country like India. We can't do what China does, which is suppress people and
run an authoritarian system. Our design just will not accept that. तो मोटा मोटा राहुल गांधी ने दोस्तों कहा, भारत में इस समय लोकतांत्रिक ढांचे पर संपूर्ण हमला हो रहा है, जो देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यही बात तो राहुल गांधी भारत में भी कहते हैं, भारत के लोगों के बीच भी यही बात रखते हैं, यही बात उनकी मीडिया में आती है। आज की स्थिति में जब दुनिया एक है तो संदेश वहां के लोगों तक पहुंचता ही होगा। अब राहुल गांधी यही बात कोलंबिया में कह रहे हैं कि भारत में अब सेंट्रलाइज लेवल पर भ्रष्टाचार हो रहा है। 3-4 बड़े कारोबारी पूरे अर्थतंत्र पर कब्जा कर रहे हैं और प्रधानमंत्री से उनका सीधा संबंध है। सेम टू सेम वही आरोप लगा रहे हैं जो भारत में मोदी पर राहुल गांधी लगाते रहे। लेकिन कोलंबिया में जब यही बयान राहुल गांधी ने दिया तो बीजेपी हाय तौबा मचाने लगी, इसे भारत का अपमान करार देने लगी। अरे भाई, बीजेपी पर निशाना साधना भारत का अपमान कैसे होता है? मोदी पर निशाना साधना देश का अपमान कैसे हुआ? दोस्तों, मोदी के 6 पुराने बयान आपको सुनाऊंगा, जिसे सुनेंगे तो यही कहेंगे राहुल गांधी ने तो पीएम मोदी के सामने कहीं नहीं ठहरते हैं। लेकिन सबसे पहले बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी के इस बयान को सुनिए। विगत 24 घंटे में या 24 से 36 घंटे में देश ने 2 प्रकार के दृश्य देखे। एक, विगत 100 वर्षों से देश के लिए निरंतर समर्पित, राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक उत्थान के लिए अपना प्रतिपल समर्पित करने वाले विश्व के सबसे बड़े संगठन, सांस्कृतिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी पूर्ण होना और उस शताब्दी के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक ऐसा सिक्का जारी होना जिसमें संभवतः भारत के स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार किसी भारत की मुद्रा पर मां भारती का चित्र। और इन्हीं 24 घंटे में देश ने एक दूसरा दृश्य देखा कि 140 साल पुरानी पार्टी, एक ब्रिटिश ऑफिसर एलन ऑक्टेवियम ह्यूम के द्वारा स्थापित पार्टी, जिसके पहले 25 साल में अनेक ब्रिटिश सेक्रेटरी अध्यक्ष रहे, और 100 साल से जिसका एक ही परिवार का उस पर वर्चस्व है। आप सब लोगों को यदि ना ध्यान हो तो मोतीलाल नेहरू 1919 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और 1928 के बाद 29 में उन्होंने अध्यक्षी सीधे मोतीलाल नेहरू ने जवाहरलाल नेहरू को ट्रांसफर की थी। यानी 100 साल से एक ही परिवार के आधिपत्य के बाद भी उस संगठन के पतन और सत्ता छूटने की बदहवासी में उनके खानदान के बरखुरदार के द्वारा, जो कि आज भारत विरोधी शक्तियों के फर्माबरदार बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं, अपनी उसी आदत के अनुरूप विदेश की धरती से एक और ऐसा बयान दिया है जिसमें कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है। अगर आपको ध्यान हो तो मात्र कुछ दिन पहले मैंने ही आपको एक बाइट देते समय एक आवश्यक सूचना दी थी कि राहुल गांधी जी पुनः विदेश जा चुके हैं, और फिर आप तैयार रहिएगा, कोई ना कोई भारत विरोधी बयान अवश्य आपको सुनने को मिलेगा। अगर सीधे दरवाजे से नहीं तो पिछले दरवाजे से, और खिड़की से नहीं तो रोशनदान से मिलेगा। इसलिए आप लोग चारों तरफ से सतर्क रहिएगा। और आज उसी की एक बानगी दिखाई पड़ी है। ये 2 अंतर देश की जनता के सामने स्पष्ट हैं कि कौन भारत के हित में और कौन भारत विरोधी शक्तियों का जाने में चाहे अनजाने में एक टूल बनता चला जा रहा है। और यह कोई अपने आप में अलग सामान्य घटना नहीं है। इससे पूर्व राहुल गांधी जी इतनी बार विदेश में जाकर भारत विरोधी बयान दे चुके हैं कि मैं उन सबको गिनाऊंगा तो आप सबका समय बिना वजह व्यर्थ होगा। अभी सितंबर 2025 में जो अभी इन्होंने बयान दिया कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, जो अभी आज दिया है, इससे पहले वो सितंबर 2024 में वॉशिंगटन, 9 सितंबर 2024 को अमेरिका के टेक्सास, सितंबर 2024 में वर्जीनिया, 6 मार्च 2023 को लंदन, फिर मार्च 2023 में फिर लंदन, और मार्च 2023 में कश्मीर को लेकर अन्य विषयों को लेकर उन्होंने बोला है। मई 2022 में लंदन में, मई 2022 में रूस यूक्रेन के बारे में उन्होंने बोला, फिर ब्राउन यूनिवर्सिटी में मार्च 2021, दुबई में जनवरी 2019,
लंदन में अगस्त 2018, मलेशिया में मार्च 2018, सिंगापुर में मार्च 2018, बहरीन में जनवरी 2018 और अमेरिका में सितंबर 2017। ये एक लंबी कहानी है जो उनके दिल के अंदर की नफरत की जुबानी आपको बहुत साफ दिखाई पड़ती है। सुना आपने सुधांशु त्रिवेदी क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी को वो भारत विरोधी शक्तियों के फर्मा बरदार बता रहे हैं। कह रहे हैं राहुल गांधी ने कोलंबिया में भारत विरोधी बयान दिया। अब जबकि बीजेपी राहुल गांधी को भारत विरोधी करार देने में लगी है, तो सोशल मीडिया पर एक के बाद एक पीएम मोदी के वो 6 बयान वायरल होने लगे जो उन्होंने विदेशी धरती पर दिए। चलिए आपको पीएम मोदी के वो 6 बयान सुनाते हैं जिसकी वजह से भारत की जग हंसाई हुई। छोड़ो यार, डूब गए, कुछ होगा नहीं। अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। तो पीएम मोदी के इस बयान को किस तरह से लेंगे? चीन में जाकर कहते हैं लोगों को भारतीय पैदा होने की वजह से शर्मिंदगी होती थी। सोचिए, प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए अपने सबसे बड़े दुश्मन देश चीन के लोगों के बीच क्या कह रहे हैं। भारतीयों को 2014 से पहले भारतीय होने पर शर्मिंदगी महसूस होती थी। अब पीएम मोदी की ओर से विदेश में दिए गए एक और बयान को सुनिए। यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है? चलो छोड़ो, चले जाए कहीं और। मोदी जी दक्षिण कोरिया की यात्रा पर थे। वहां लोगों के बीच कहते दिखे। पहले लोग कहते थे पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया, हिंदुस्तान में पैदा हो गए। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग हैं? चलो छोड़ो, चला जाए कहीं और। तो बताइए दोस्तों, अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं भारत के मूल आधार विविधता में एकता को खतरा है, उसमें क्या गलत उन्होंने कहा? क्या भारत में ऐसा नहीं हो रहा है? क्या बीजेपी हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स नहीं कर रही है? कौन सा पंजा था जो 85 पैसा घिस लेता था सरकार? जर्मनी में मोदी सवाल पूछते हैं वो कौन सा पंजा था जो 85 पैसे घिस लेता था। सीधा सीधा कांग्रेस पर निशाना साधा गया प्रधानमंत्री की ओर से। अब राहुल गांधी कोलंबिया में बीजेपी पर अटैक कर रहे हैं, मोदी को निशाने पर ले रहे हैं। तो क्या गुनाह कर रहे हैं? मतलब अगर मोदी जी पिछली सरकारों कांग्रेस और गांधी परिवार पर वार करेंगे तो वो जायज है, और वही राहुल गांधी विदेश में मौलिक विचार रखें तो वो देश के साथ गद्दारी है। गजब की हिपोक्रेसी बीजेपी करती है। आपको हैरानी होगी, मैंने आकर के पहले की सरकारें इस बात का गर्व करती थी कि हमने ये कानून बनाया, हमने फुटिकना कानून बनाया, हमने फलाना कानून बनाया। आपने सुना होगा सब चुनाव में। मेरी गाड़ी उल्टी है। उनको कानून बनाने में मजा आता था, मुझे कानून खत्म करने में आनंद आता है। ऑस्ट्रेलिया में मोदी जी ने कहा था पिछली सरकार को कानून बनाने का शौक था, मुझे कानूनों को खत्म करने का शौक है, उनकी गलतियां सुधार रहा हूं। यहां पर अपनी पीठ थपथपाने के लिए पूर्व की सरकारों को पीएम मोदी ने नीचा दिखाने का काम किया। हमारे यहां पहले जो सरकारें थी वो इस बात का गर्व करती थी कि हमने ये कानून बनाया, हमने वो कानून बनाया, हमने ठीकना कानून बनाया, हमने फलाना कानून बनाया। आपने पूरे चुनाव के कैंपेन में देखा होगा, यही बात चलती थी, हमने ये कानून बनाया, हमने वो कानून बनाया। अमेरिका में मोदी ने कहा पिछली सरकार ने सिर्फ कानून बनाए, मैं कानूनों को खत्म कर रहा हूं। दोस्तों, पिछले 11 सालों में 150 से ज्यादा देशों की पीएम मोदी ने यात्रा की। कई जगहों पर उनके लिए मंच सजाए गए। जहां भी उन्होंने स्पीच दी तो उनके निशाने पर देश की प्रमुख पार्टी कांग्रेस और उसके लोग थे। दवाइयां पैकिंग अच्छा होता है, दवाई लिखने वाले को भी कुछ मिलता रहता है। आप जानते होंगे डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंस कभी सिंगापुर होती है, कभी दुबई होती है?
वहां कोई बीमार है इसलिए नहीं जाते। फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए जरूरी है, करते हैं। I'm very surprised to hear such a statement from a head of the family, and that too on a foreign soil. अब देखिए, ब्रिटेन के दौरे पर पीएम मोदी ने कहा था कि भारतीय डॉक्टर पैसे और लालच लेकर दवाइयां लिखते हैं। इसे किस कैटेगरी में रखा जाए? बीजेपी वालों को समझना होगा, राहुल गांधी विदेशी सरजमी पर जो बोल रहे हैं वो भारत के खिलाफ नहीं है, भारत के लोगों के खिलाफ नहीं है, बल्कि उनके निशाने पर बीजेपी और पीएम मोदी है, जिनके राज में कहीं ना कहीं राहुल गांधी को लगता है देश के आधार को खतरा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? राहुल गांधी देश के साथ अगर विदेश में ये कहते हैं कि बीजेपी के राज में लोकतंत्र को खतरा है, क्या ये देशद्रोह है? अगर ऐसा है तो भारत में तो राहुल गांधी ने सैकड़ों बार कहा बीजेपी के राज में लोकतंत्र को खतरा है, तो फिर उन्हें जेल में डाल देना चाहिए था। अरे भाई, राहुल गांधी को जो दिख रहा है वो विदेश में जाकर बोल रहे हैं। अब 90 का दशक तो है नहीं कि दुनिया से कोई बात छिप जाएगी। 21वीं सदी है, इस दौर में जैसी आपकी राजनीति होगी दुनिया उसको उसी तरीके से देखेगी। राहुल गांधी वही बता रहे हैं जो दुनिया पहले से देख रही है, और भारत के 70% लोग बीजेपी की राजनीति के भुक्तभोगी है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। India is a completely different system from China. So whereas China is very centralized, uniform, India is decentralized and has multiple languages, multiple cultures, multiple traditions, multiple religions. सत्ता छूटने की बदहवासी में उनके खानदान के बरखुरदार के द्वारा, जो कि आज भारत विरोधी शक्तियों के फरमाबरदार बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं, अपनी उसी आदत के अनुरूप विदेश की धरती से एक और ऐसा बयान दिया है